उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। हिमांशु जी हमारे अरवली जिले के ब्यूरो अभी सीनियर ब्यूरो चीफ बन गए हैं। उनके पास 2 जिला है, साबरकांठा और अरवली। दोनों जिला को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभा रहे हैं और उन्होंने आज ही मुझे जस्ट आधे घंटे पहले आपके बारे में बात करी एंड ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट यू दैट यू आर गोइंग टू यूएस फॉर योर further studies for PhD degree, doctorate degree, and you had completed your master's in chemical engineering. तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस बिग अचीवमेंट। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बताइए, पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। So my full name is Harsh Rajesh Reena Darji. So by the name you can get it. Father's name is Rajesh Hargovind Darji, and my mother's name is Reena Rajesh Darji. So basically, I am from Bakrol, the same village Himanshu Bhai is from, and currently I'm pursuing integrated masters of chemical engineering at chemical engineering as my major and a minor specialization in petroleum and petrochemicals technology at Institute of Chemical Technology, Marathwada campus, Jalna. So basically, it's an off-campus of main ICT Mumbai campus. It is very well known among chemical engineers around the world by the name UD City. So I am going to University of Wisconsin Madison for my PhD in chemical engineering. Along with me, I have my like other friends who are going to different universities. And because of this unique course, the best thing about this is that we are getting a fully funded master PhD degree so that we don't have to pay a single penny as our tuition fees, and also we receive a monthly stipend which is uh, which supports our living and all the other costs, and it is above the minimum requirement of that city. So in an all, you get to learn things, you get to do research, you get to explore, you get to know more people, and also you are not financially burdened, because in general when people and students go for masters, they need to take a big chunk of loan by either mortgage or in some means from bank or educational loan basically, which is around 60-70 lakhs. In PhD you don't have to take a loan, and it's a very easy process. You don't have to do any hassle. It's just that you need to build a strong CV, a good research background, and everything is very simple then. So that after completing PhD, what are your further projects and what are further dreams? Are you willing to come back to India and do something big for our country? Yeah, absolutely. India comes the first. So after my PhD, I am planning to convert my thesis or research work in some sort of a startup or some process in which I can help young students, because in my course, it is a unique course where you get to do internships for a good amount of time. So my idea is the difficult times which I went through finding internships, finding good places. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। आपने बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना कि एक हीरे जो आपने हीरा ढूंढ के दिया है और मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ हिमांशु जी को भी और हमारे साथ जो स्टूडेंट जो यहाँ पे विराजमान है। बहुत खुशी होती है ऐसे स्टूडेंट विद्यार्थियों को देखकर जो अपने जिले का ही नहीं पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। और हिमांशु, सच माने में आपने अरवली किस कदर संभाला है। आज आप सीनियर ब्यूरो चीफ बन गए हो। 2 जिला आपको दिया, अरवली के बाद साबरकांठा भी दिया है। तो इसी तरह से आप हमें हीरे ढूंढ कर दीजिए और हम ऐसे लोगों का पूरे देश के लोगों तक हम लोग उनकी बातों को सकारात्मक कार्यों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिर जी सीमा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हर्ष दर्जी है, हर्ष राजेश भाई दर्जी। वो अरवली का है ना, पूरे भारत का गर्व है और हमें उन पर नाज है, क्योंकि वो हमारे जिले के, हमारे तहसील के और हमारे गांव के ही वो युवा है। और आज पूरे भारत का नाम रोशन करने के लिए वो यूएसए जा रहे हैं और वहां पे जाके अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
मिस्टर दर्जी आप आगे बढ़ाइए और अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए, जो आप बोल रहे थे उससे आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, so coming to the same point that uh, I was thinking to convert my PhD work वापस आके इंडिया आके मेरा तो एक ऐसा मेरा आइडिया है कि मेरी जब पीएचडी हो जाए तो मैं वापस इंडिया आके इफ आई कैन कन्वर्ट दैट रिसर्च इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप या कोई कंपनी में मैं हेल्प कर सकूं जहाँ पे मेरे जैसे जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो शायद मेरे ही शूज में होंगे आज से 5 या 6 साल बाद, तो शायद मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि यू कैन टेक दिस स्टेप्स या प्रॉब्ली नॉट द सेम स्टेप्स व्हिच आई टुक, बट किधर जो मैंने मिस्टेक्स किए they might not repeat and they do a better thing. So being a young guy in the research, हमारा काफी बार we face lot of hardships. हम लोगों को बहुत सारे नेगेटिव इमोशन से गुजरना पड़ता है because generally when you do a fixed job you are not expected to have an absurd outcome. रिसर्च में ऐसा होता है कि आप जो कर रहे हो कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो वो आपके फेवर में होगा या तो फेवर में नहीं होगा. तो केमिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल ड्रिवन, बट उसमें भी कंप्यूटेशनल का भी उतना ही हेल्प लगता है. सो व्हाइल डूइंग रिसर्च वी फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स. हम बहुत सारे हर्डल्स पास करके रिसर्च में आगे बढ़ते हैं. सो माय ओनली एम विल बी कि मेरे शूज में जो अपकमिंग जनरेशन होगी, इफ आई कैन गाइड देम और इफ आई कैन हेल्प देम इन सम और द अदर वे कि हाँ जो शायद मैंने मिस्टेक्स किया या जो शायद मैं नहीं कर पाया, जो शायद उनके लिए वो बेस्ट होगा, और इफ आई कैन गाइड देम और इफ आई कैन हेल्प देम इन सम वे देन इट विल बी द बेस्ट थिंग आई कैन डू प्रोबेबली. फाइनेंशियल स्केल बट थिंकिंग ऑन अ स्केल कि यू क्रिएट यंग माइंड्स जो बिलियन डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी ऐसे ही जनरेट कर सके. बिल्कुल। मिस्टर दर्जी एक बहुत अहम सवाल अभी उठकर आ रहा है कि 2030 तक जो सुनने में आया, क्योंकि वो सब्जेक्ट पेट्रोकेमिकल्स है, इसलिए उसी के संदर्भ में मैं सवाल पूछूंगी. 2030 तक मैंने ये सुना है कि डीजल जितने भी ऑटोमोबाइल है डीजल वाले, वो सारे ऑटोमेटिक उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो बंद होने वाली है और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल को लॉन्च किया जाएगा पूरी तरह से पूरे जोर में, और साथ में हाइड्रोजन वाले भी ऑटोमोबाइल जनरेट होने वाले हैं. तो पेट्रोकेमिकल्स के स्टूडेंट होने के नाते जो हमारा देश जो आज इस क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और डीजल जितने भी ऑटोमोबाइल है वो कुछ समय के बाद, एक अरसे के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो बनना बंद हो जाएगा. तो एक नई क्रांति की ओर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, नई दुनिया की ओर, नई सोच की तरफ. तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आप उसी सब्जेक्ट को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी सोच क्या कहती है सब्जेक्ट? तो आपने जो तीनों भी चीजें बोली मैं उसका जॉइंट लिंक बना सकता हूँ. तो पहले तो आपने बोला पेट्रोकेमिकल्स, तो दैट इज कोर केमिकल इंजीनियरिंग रिसर्च. उसमें बाद में आपने हाइड्रोजन की बात की, तो दैट कम्स अंडर कैटलिसिस एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग. हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के रिसर्च का एक डोमेन है. एंड जो आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में मेंशन किया, तो उसका जो ट्रांजिशन है उसका हम केमिकल इंजीनियर्स ही स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्टम्स इंजीनियरिंग बोलते हैं. तो इट इज अ ट्रू फैक्ट कि इट इज नेसेसरी कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर दे एंड वी मूव टुवर्ड्स एफिशिएंट सिस्टम्स फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. बट जब हम पेट्रोकेमिकल्स वाइड टॉक बताते हैं तो पेट्रोकेमिकल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है दैट इज इथिलीन एंड प्रोपिलीन एंड एवरीथिंग. तो वो हमारे जो डेली यूसेज के जो केमिकल्स है, इवन प्लास्टिक हो गया, तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन अ पर्सन वेक्स अप, जो सुबह ब्रश हाथ में लेता है तो वो जो फाइबर्स बनते हैं वो पेट्रोकेमिकल के डेरिवेटिव से होते हैं. एंड द वेरी लास्ट थिंग जो पर्सन वेयर्स एट नाइट दैट इज द नाइट सूट, दैट इज पॉलीमर बेस्ड नाइट सूट्स जो होते हैं, लाइक जो पॉलीस्टेरीन या कॉटन जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव. सो प्रोबेबली वो पूरा डिप्लीट तो नहीं हो जाएगा, बट हाँ जो व्हीकल्स और जो बिग बिग एमिशंस है कार्बन के, वो शायद हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विथ अ सस्टेनेबल policy development, that will be a very good boost for our country to move ahead with minimum carbon footprint in 2030 I mean.
अच्छा, जो एक सबसे अहम सवाल एक ये भी उभर कर आ रहा है कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल अभी बस उसका फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर अभी हम लोग ने प्रवेश कर लिया है। वी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन अवर इंडिया इलेक्ट्रिक कार एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑल्सो, ई बाइक एंड ऑल, ई मोपेड yes. और। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसकी जो बैटरीज होते हैं वो इतनी महंगी होती है कि आफ्टर हाँ. यूजिंग 3 के बाद जो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार है उसको वो वापस दोबारा उसको नहीं ला पाएगा। तो उसकी सोल्यूशन के लिए आप जैसे रिसर्च करने वाले व्यक्ति मैं चाहूंगी कि हमारे भारत देश में ऐसा कोई उसका कोई ऑप्शनल या कोई सोल्यूशन बने जो बहुत कम दामों में बैटरी बने और हमारे देश के लोग इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक मोपेड इस्तेमाल करें, इसकी बैटरी की खर्चे कुछ हद तक कम हो जाए। आपकी क्या सोच रहती है? हाँ, तो इस सवाल का जवाब आपके प्रीवियस सवाल के जवाब के साथ मैं लिंक करूंगा। सो आपने मेंशन किया था कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सो somewhere between diesel vehicles and petroleum vehicles and basically conventional जो vehicles है and electronic vehicles, उन दोनों की कैटेगरी के बीच में हाइड्रोजन ड्रिवन व्हीकल्स भी आते हैं। एंड जो रिसर्च है, केमिकल इंजीनियरिंग का जो मेजर रिसर्च चंक है, इट वर्क्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल लो कॉस्ट हाइड्रोजन। तो इफ वी कैन अचीव अ लो कॉस्ट सस्टेनेबल हाइड्रोजन इन इंडिया, तो हमारे जो पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स है उसका भी हम कॉस्ट लो कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में काम आता है ऑफ लो कॉस्ट। तो इन दैट वे you can generate a low cost electricity, and on the other hand if you can generate a low cost hydrogen, you can have a low cost hydrogen direct fuel in your hydrogen vehicles, so that so आपके जो तीनों भी सेक्टर्स है वो आप कवर अप कर सकते हो विद द रिसर्च। सो दैट रिसर्च इज करेंटली गोइंग ऑन एंड वो काफी अर्ली स्टेज पे है अभी। देयर इज अ रिसर्च लैब इन इंडिया, नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी CSIR की लैब है एट पुणे। They have developed a few good research work where hydrogen driven vehicles are tested, but this research needs to get a boon and a boost of how it can be taken up. There are companies like big names Reliance, Adani's, which are trying to develop hydrogen production plants in the petrochemical division. We call it in reforming especially. So if that can be done at low cost and good research way, तो उसमें भी हमारे केमिकल इंजीनियरिंग का ही रिसर्च है। सो इफ ऑल ऑफ दैट कैन बी कंबाइंड प्रिसाइजली, देन इंडिया को बहुत इजी ट्रांजिशन मिलेगा एट अच्छे वे में। सो उससे जो मध्यम वर्गीय है, सामान्य लोग मेरे जैसे आपके जैसे, उनके लिए बहुत किफायती और अच्छी चीज रहेगी। मींस दे हैव अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हम सोचते हैं कि वेस्टर्न नेशंस का कैसा रहेगा आउटलुक, उसके सामने हमारा बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। हिमांशु जी, आप क्या सवाल पूछ रहे थे हमारे इस स्टूडेंट से जो बहुत ही उम्दा सवालों का जवाब बहुत ही बेहतर तरीके से दे रहे हैं और पूरा डिस्क्राइब करके दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आम जनता को ये सब सवालों के जवाब जानने में बहुत ही उनको अच्छा लगेगा। बहुत आसान तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। तो हिमांशु जी, आपका क्या सवाल है मिस्टर दर्जी से करा? हर्ष भाई नॉलेजेबल व्यक्ति है और उनके आपकी और उनसे जो संवाद हुए जो जानकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं बता दूं, हर्ष भाई के इसके साथ हमारी बातचीत होती रहती है क्योंकि वो हमारे एक ही हम परिवार के हैं और एक ही घर पे रहने वाले हैं। इसीलिए मेरा उनसे कोई संवाद नहीं, क्योंकि आपने जो संवाद छोटे छोटे वो भी बड़ी बारीकाई से उनसे बात की और हर्ष भाई ने बिल्कुल बारीकाई से उनका जवाब दिया। और हर्ष भाई आगे जाएंगे और फिर गुजरात और पूरे भारत में अपना नाम रोशन करेंगे और हमारे गांव का भी नाम रोशन करेंगे। हर्ष दर्जी जी को और हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास दोनों को ही उनके अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये आशा करते हैं कि हर्ष जी और कामयाब हो और आगे बढ़े। धन्यवाद।